Hello guys, hope all of you are doing good. The IES companion team has launched this new initiative called Decoding UPSC Prelims. In this initiative, we will discuss and analyze the previous year papers of UPSC Prelims since the year 2013 and decode the important areas and patterns of UPSC Prelims exam. This will be extremely crucial in the upcoming examinations. Alongside solving these questions, we will also learn various tips and tricks and some other hacks which will come quite handy in the exam. This is our attempt to help students streamline their preparations and increase their score enormously. So, without any further delay, let's begin. In this series of geography previous year paper discussion, let's start with the year 2018. In this, the first question is that which of the following is an artificial lake? They have given these four options, and alongside to make your work easier, UPSC has also included the name of the states with which these lakes are being associated. So let's look at these options. इसमें the first option is Kodaikanal. This is in the state of Tamil Nadu. And if we see on the map of South India, यहाँ पे ये दो states है Kerala, this is Kerala and Tamil Nadu. So this lake is somewhat here, Kodaikanal in the Dindigul district of Tamil Nadu. And this lake is an artificial lake which was created in 1863 by the British. तो इट्स एन आर्टिफिशियल लेक. सो इसका आंसर अगर हम देखें उस हिसाब से फर्स्ट इज द आंसर. बट वी विल नॉट लीव दिस थिंग हेयर. हम जो और बाकी के तीन ऑप्शन है उसको भी हम देखते हैं क्या कुछ हो, बिकॉज दे आर देमसेल्व्स इंपॉर्टेंट. सो इफ वी सी द सेकंड ऑप्शन, दैट इज कोल्लेरू लेक विच इज इन आंध्र प्रदेश. दिस लेक लाइज बिटवीन द डेल्टास. इट लाइज बिटवीन द डेल्टास ऑफ कृष्णा गोदावरी. तो ये कृष्णा गोदावरी के डेल्टा के बीच में लाई करती है. एंड दिस कुलेरू लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक, इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. अलोंग साइड इट्स ऑल्सो अ रामसर कन्वेंशन साइट. यू शुड नो दैट हमारे देश में कितनी साइट्स हैं एंड कहाँ कहाँ पे है. यू शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट इट. देन वन मोर थिंग important here is that one of the bird sanctuary lies here. It is very important, and that bird sanctuary is Atapaka bird sanctuary. Atapaka bird sanctuary. This is very important. It can be straight away asked by UPSC that which bird sanctuary lies here, or they can give in the form of a statement also. So it's very important. इसको ध्यान से कर लेना. That is Atapaka bird sanctuary. Now coming to the third option, that is Nainital Lake. It is in the foothill of the Himalayas. It is also known as Nani Lake, and its origin is tectonic, or it is also a freshwater lake. It's a natural freshwater lake, and it's in the shape of a kidney shaped or Christian shaped. क्रिश्चियन शेप. ये क्या थी? नैनी लेक. और इसके बाद जो हमारी फोर्थ लेक है ये रेणुका लेक. ये है इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड इट इज ऑल्सो अ नेचुरल लेक, एंड इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश. सो दीज वर द फोर ऑप्शंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, एंड ऑफ दैट द आंसर वाज Kodaikanal lake is an artificial lake. These rest of the lakes are natural lakes. So इसका आंसर था Kodaikanal. Now let's move to the next question. It says that the Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. This question is about volcano, and India में volcano दो है mainly. One is there in Narcondam Island, and second is Barren Island. They both are situated in the Andaman and Nicobar Islands. यहाँ पे ये लाई करते हैं, यहाँ कहीं लाई करते हैं, और एक यहाँ पे, जिसमें से नारकोंडम आइलैंड इज एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एंड बैरन आइलैंड इज यूज्ड टू बी कंसीडर्ड अ डोरमेंट वोल्केनो कुछ टाइम पहले तक, क्योंकि इसमें ये वाला जो वोल्केनो था काफी टाइम से इट वाज नॉट शोइंग एनी एक्टिविटी, बट इन 2017 इट अगेन शोन देयर वाज एक्टिविटी इन दिस वोल्केनो, एंड इसीलिए ये वाला सवाल यहाँ पे आया था. दिस वाज इन 2018 बिकॉज इन 2017 दिस वोल्केनो शोड सम एक्टिविटी. तो अब हम ये देखें सो जब ये डोरमेंट से अगेन एक्टिव हो गया तो इसको हम हटा देंगे. इट्स एन एक्टिव वोल्केनो, मतलब ये 2018 के हिसाब से इट वाज एन एक्टिव वोल्केनो. तो इट्स एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी. ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है. देन इसके बाद जो स्टेटमेंट है, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार. सी यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो सच डिटेल्ड फैक्ट्स अबाउट इट. आपको इतने डिटेल में फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, एंड यूपीएससी ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू शुड नो सच फैक्ट्स. सो इसको अगर उन्होंने स्टेटमेंट में डाल भी दिया है तो अभी फॉर द टाइमिंग इसको यहीं पे छोड़ दो. नाउ इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं. वो देखो, ये थर्ड स्टेटमेंट बोलता है द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन.
सी दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बिकॉज इट इरप्टेड इन 2017. सो ये उस हिसाब से स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो रही है. नाउ सी द ऑप्शंस. वी हैव द फर्स्ट एंड द थर्ड. वी नो कि फर्स्ट इज राइट एंड थर्ड इज रॉन्ग. तो जब थर्ड रॉन्ग है, फोर्थ हट गया, थर्ड हट गया, सेकंड हट गया एंड फर्स्ट आंसर में रह गया. सी आप इसमें ध्यान से देखो, आपको सेकंड स्टेटमेंट का कहीं यूज ही नहीं था. इट वाज जस्ट बीइंग गिवन बाय यूपीएससी टू कंफ्यूज यू. इसका कहीं रोल नहीं था. यू शुड नो द फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेटमेंट. मैं इसीलिए कह रहा था दैट यूपीएससी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू शुड नो सच डिटेल्ड फैक्ट्स कि वो 140 किलोमीटर है या 150 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है. ये सब फैक्ट्स इसको ट्राई भी मत ये करना कि यहाँ पे क्या कुछ इसकी एग्जैक्ट है डिस्टेंस. तो उसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज आपको इतना डिटेल में फैक्ट्स याद नहीं रखना. यहाँ पे वोल्केनोस है. सो इसका आंसर क्या था? दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ये बोलता है, इन इंडिया द स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस. सी दिस क्वेश्चन इज ऑन मिनरल्स. और हम अगर ये देखें, मिनरल्स ना दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं मेजर मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोल हो गया, आयरन हो गया, ये सब. और एक होते हैं माइनर मिनरल्स. माइनर में जैसे आपका सैंड हो गया, देन आपका क्ले हो गया, ये सब आता है इसमें. द पावर टू ऑक्शन मेजर मिनरल्स इज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड माइनर इज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स. तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है, और ये जो नॉन कोल माइंस है, इसमें हम नॉन कोल माइंस में देखें तो इसमें जैसे यही आपके सैंड हो गया, सैंड ग्रेवल हो गया, क्ले हो गया, देन रॉक एसफाल्ट हो गया, ये सब आपके नॉन कोल माइंस में है. तो ये बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस. ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी क्योंकि दिस कम अंडर माइनर मिनरल्स और इसको स्टेट गवर्नमेंट्स ऑक्शन करती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी. नाउ कम टू सेकंड पार्ट. आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस एंड द थर्ड इज राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस. अब जस्ट इमेजिन करो, आपको ये सेकंड और ये जो थर्ड स्टेटमेंट इसका आपको बिल्कुल भी नहीं आइडिया है कि भाई इनमें क्या कुछ है. तो जस्ट ट्राई टू नाउ वील सी द एलिमिनेशन मेथड कि उससे हमको क्या कुछ मिलता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होने के बाद हमारा फर्स्ट ऑप्शन हट जा रहा है एंड थर्ड ऑप्शन हट जा रहा है. तो या फिर टू या फिर थर्ड. सो ईदर ऑफ द स्टेटमेंट इज राइट. नाउ इफ यू सी दैट, अगर आपने एक मूवी आई थी कोलार गोल्ड फील्ड्स, KGF, तो दैट वाज ऑन द कोलार गोल्ड फील्ड्स. ये कहां पे थी? Kolar is a place in near Karnataka. Not near Karnataka, it's in the state of Karnataka. And अगर आप ये देखो, आंध्र प्रदेश is a state near Karnataka. तो अगर कर्नाटका में गोल्ड माइंस है तो there is quite high possibility that gold mines आंध्र प्रदेश में भी होंगे. इट्स नॉट लाइक कि वहां पे भी होंगी, बट हाई पॉसिबिलिटी है कि वहां पे भी गोल्ड माइंस हो सकती है. तो एक तो बात ये रही. और इसमें देखो ये बोल रहे हैं राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस. तो हम अगर इसमें देखें, यहां पे सिर्फ एक स्टेट है और यहां पे दो स्टेट है, तो द चांसेस ऑफ हैविंग गोल्ड माइंस इन टू स्टेट्स इज समवॉट हाई. और अगर आप इससे अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते हो तो इस कॉमन सेंस से आप ये भी जैसे यहाँ पे कर्नाटका है और यहाँ आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे शायद गोल्ड माइंस हो सकती है. तो इस स्टेटमेंट को आपको रॉन्ग करके या आप थर्ड स्टेटमेंट को राइट कर सकते हो एंड इसका आंसर इज फोर्थ. दैट इज ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज राइट. अब ना इसमें एक और चीज देखो, इसका हैक ये है कि जब भी यूपीएससी ने राजस्थान से कुछ भी सवाल आया है तो वो स्टेटमेंट यूजुअली राइट है. इफ यू फाइंड द स्टेट ऑफ राजस्थान इन अ स्टेटमेंट, दैट इज यूजुअली राइट. मतलब ये एक हैक है. एंड ऑफ कोर्स राजस्थान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर यूपीएससी. इसमें स्पेसिफिकली जो भी इसमें स्टेट में मिनरल्स है उसको बहुत अच्छे से कर जाना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट फेवरेट स्टेट्स फॉर यूपीएससी. तो इसका कर जाना. अब इसी साथ में हम एक और देखते हैं कि हमको गोल्ड कहां का मिलता है. जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग थी, ये गोल्ड कहां का मिलते हैं. तो देखो, गोल्ड हमारा बिहार में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, जहां की आपका क्या था, कोलार गोल्ड फील्ड्स जो है यहाँ पे कर्नाटका में है. देन आपका वेस्ट बंगाल में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है और एमपी में मिलता है. और आंध्र प्रदेश में कहां मिलता है? अनंतपुर में मिलता है. अनंतपुर में मिलता है इन आंध्र प्रदेश. सो इसमें इसलिए दिस आंध्र प्रदेश में मिलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज राइट. सो द आंसर इज डी. नाउ इसके बाद वाला सवाल है वो देखते हैं. ये बोलता है which one lies on the longitude closest that of the Delhi. तो हम देखिए, this is your longitude and this is your latitude. ये latitude है और ये longitude है. तो if we analyze, ये हमारा न्यू दिल्ली है. अब इसकी latitude देखो, आप इसको अगर आप ऐसे देखते हो तो ये इसकी latitude है. जो हमारे पास चार ऑप्शंस है वो है बेंगलुरु,
हैदराबाद, नागपुर एंड पुणे। तो इफ यू एनालाइज, ये दिल्ली की है, इस लाइन के सबसे पास बेंगलुरु है, सो बेंगलुरु इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन 1। अगेन दिस वाज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको मैप में याद रखने से ज्यादा आपको एनालिसिस आना है कि यू शुड विजुअलाइज कि कौन सी चीज कहां पे। अब जैसे वो इस टाइप में आया तो दे कैन आस्क अबाउट द लैटिट्यूड ऑल्सो, कि ये सब भी वो पूछ सकते हैं कि राजस्थान के लैटिट्यूड पे क्या है, तो वो यहाँ से ये सब, या फिर यहाँ से कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। तो इसलिए जस्ट यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एटलीस्ट कैपिटल्स का आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार प्लीज ध्यान से देख लेना। मेनली वो इस एरिया से ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं, ये वाला जो एरिया है, तो एक बार इस पे ध्यान दे देना। एक ये और एक जो इस साइड वाला एरिया, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ये तो बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। नाउ इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर इन द ट्रॉपिकल वाटर, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन कोरल रीफ्स। अब हम अगर देखें व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द what are the favorable condition for the coral reef to grow? They need shallow water bodies having a temperature of 23 to 25 degrees Celsius is the ideal temperature, and it should not go beyond 35 degrees Celsius, तो उससे कम ही होना चाहिए। And there is a need for saline water होना चाहिए, that the water should be having a salinity of 27 per parts million to 40 per parts million, ये है। तो अब अगर आप इनको ये देखते हो तो दे आर मेनली द कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज। तो इसी हिसाब से हम देखें मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। देन इसके बाद स्टेटमेंट है मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। Now, if you see that these all are tropical countries, and Australia में we have Great Barrier Reef जो बहुत बड़ी है, ग्रेट बैरियर रीफ, इसी हिसाब से देखते हैं। देन यू हैव इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो इसमें ना मतलब यूपीएससी ने थोड़ा सा उसने ज्यादा ही जो फैक्चुअल चीज पूछ लिया था, तो अगर हम इनको देखें तो अराउंड ये 35% के आसपास है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। देन थर्ड इज दैट द coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by tropical rainforest. तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, बिकॉज एज वी सी दैट coral reefs are the tropical rainforest of the oceans, and they are known to have a big diversity of मरीन ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे काफी ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है, इसीलिए इसकी काफी ज्यादा डिमांड्स होती है टू प्रोटेक्ट द कोरल रीफ्स, एज कोरल रीफ्स आर द इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सी, और जो भी सी या ओशियन है उसकी हेल्थ के हिसाब से उसकी हेल्थ हम वी कैन प्रिडिक्ट बाय द इंटेंसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द कोरल रीफ्स। तो ये सब है। तो अगर हम इसमें देखें इसका क्या आंसर है, इसमें ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट एंड द आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 एंड 3rd दे ऑल आर राइट। ओके, सो अब इसके बाद नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 6th क्वेश्चन। अब ये बोलता है दैट इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड in the manufacture of silicon wafers used in photovoltaic cell। तो हम अगर ये देखें इसमें 3rd लार्जेस्ट बोला है, तो ये आप न्यूज़पेपर में ये काफी ज्यादा आता है इसके बारे में, दैट वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द सिलिकॉन वेफर्स। और ये कहां से इंपोर्ट होती है, मेनली चाइना एंड मलेशिया जैसे इन टाइप की कंट्री से काफी इंपोर्ट होता है। तो हमारे देश में जब ऑलरेडी हम इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और हमारे देश में इस चीज की मैन्युफैक्चर बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत ही कम है, तो हम 3rd लार्जेस्ट तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देन इसके बाद है द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज द सोलर पावर टैरिफ्स आर बीइंग डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है वो डिटरमाइन करता है द सोलर पावर टैरिफ्स। अब ये एक और चीज देख लो, मतलब आजकल एक और चीज न्यूज में है कि जो लो सोलर पावर लो टैरिफ्स क्यों हो रही है इतनी ज्यादा, दे आर बिकॉज ऑफ ड्यू टू द रिवर्स बिडिंग प्रोसेस। रिवर्स बिडिंग जिसमें कि जो सबसे चीपेस्ट बिडर होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक अगर प्रोजेक्ट एक्स है, अगर हु विल बी द मतलब हु विल हैव दिस प्रोजेक्ट, इसमें अगर मान लो ए बी सी डी ई ये 5 कंपनीज ने अगर टेंडर भरा है, तो ऑफ दिस अगर मान लो सी का सबसे लोवेस्ट टेंडर है तो ही विल गेट दिस प्रोजेक्ट एक्स, और बाद में उसको वो इसी प्राइस पे जो इलेक्ट्रिसिटी को सेल करना पड़ेगा। तो ये सब है कि जो सबसे लोवेस्ट है, जो सबसे लोवेस्ट बिडर है उसको मिलता है, इसीलिए सब काफी लो टैरिफ्स हो रही है। एंड हम इसके अगर बात करें, जो फर्स्ट वाला पार्ट था, इंडिया इंपोर्ट्स
more than 90% of the solar equipment including cells and modules from the overseas. और इसके बाद अगर हम इसके बाद और क्या, हाँ, एक ये इसके बारे में बात करते हैं, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये क्या है? This Solar Energy Corporation of India, it is a company under Ministry of New and Renewable Energy, which was established to facilitate implementation of National Solar Mission. ये उसके लिए स्टार्ट की गई थी. एंड वन मोर थिंग, इट्स द ओनली सेंट्रल पीएसयू विच इज डेडिकेटेड टू सोलर एनर्जी सेक्टर. सो इट्स द ओनली सेंट्रल पीएसयू जो कि हमारा सोलर सेक्टर में डेडिकेटेड है. एससीसीआई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग में भी काम आएगा जब भी आप सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं. सो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कर लेना. ये अभी प्री में आया है बट यू कैन यूज दिस होल नॉलेज इन योर मेंस ऑल्सो. सो प्लीज इसको बहुत अच्छे से कर लेना. जो भी इसमें हमने फैक्ट्स की बात की है, फिर जो भी कुछ बात हुई, इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से करना. सो नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this question talks about which of the following are the possible consequences of heavy sand mining in the river beds. अब heavy sand minings in the river beds, it talks about mining. तो mining में क्या होता है? mining में there is removal of the sand from the, जैसे यहाँ से अगर रिवर फ्लो कर रही है तो ये वाला जो सैंड है इसको हम बाहर निकाल देते हैं. इसको बाहर जब निकालते हैं तो क्या होता है, जो पानी की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. And when there is increase in the velocity of river, there is also the increase in the intensity of eroding power of the river, and as a result the banks will be eroded more. तो ये सब होता है जब हम सैंड को माइन करते हैं फ्रॉम द रिवर बेड्स. अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा है. फर्स्ट ये पूछा है डिक्रीज्ड सैलिनिटी इन द रिवर. अब क्या होगा ये देखो, इसमें ये बोलता है that when there is a heavy sand mining, it will also deepen the river and estuaries, which may lead to saline water intrusion from the nearby sea, which increases the salinity in the river, and as a result, which increases the salinity in the river. So यहाँ पे इसने पूछा है decrease salinity और यहाँ पे हो रही है increase salinity. So this is wrong. अब इसके बाद बात करेंगे that pollution of groundwater. See, sand acts as an efficient filter for various pollutants and thus maintains the quality of water in the river. So जब हम sand को हटा देंगे तो of course the pollution will be increased in the river. तो ये right है. Then lowering of the water table. Sand aquifer helps in recharging the water table, and sand mining causes sinking of water table in the nearby areas. तो ये भी बिल्कुल राइट है. सो इसमें फर्स्ट रॉन्ग हो गया एंड ये सेकंड दोनों राइट है. तो द आंसर इज बी, दैट इज 2 and 3 ओनली. सो इसके बाद वाले सवाल देखते हैं. अब ये बात करता है कि इन तीनों में से कौन सी लेक हैज श्रंक इमेंसली ड्राइड up in the recent past due to human activities. इसमें दो चीजें आपको नोट करनी है. फर्स्ट इज दैट which one has shrunk. ये देखो इसमें which one has shrunk immensely and due to human activity. So these two are the important things which we have to see. अब RLC, अब कहाँ पे है RLC? ये रही आपकी RLC. ये देखो ये रही मैप में RLC. एंड RLC में दो रिवर्स आती है जिनका नाम है अमू दरिया एंड सिर दरिया. और अगर और डिटेल में देखना है तो ये आती है नॉर्थ से और ये आती है साउथ से. और ये RLC किन दो कंट्रीज में है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इन दोनों कंट्रीज में है. नाउ अब क्या हो रहा है कि ये जो दोनों रिवर्स है इनका पानी को ना डाइवर्ट किया जा रहा है फॉर इरिगेशन पर्पसेस, एंड दिस इज ऑफ कोर्स ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी. तो उनके कारण जब ये डाइवर्ट किया जा रहा है तो इसमें पानी कम आ रहा है. एज अ रिजल्ट RLC हैज श्रिंकिंग. इट इज बीन श्रिंकिंग ओवर द ईयर्स. आप अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, आप ये देखो, ये है RLC 1960 में और ये अभी कुछ टाइम ओल्ड पिक है. तो ये देखो, ये इसका साइज था और इसका ये साइज हो गया है. तो यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि जो RLC है ये श्रिंक हुई है. तो फर्स्ट इज राइट. नाउ ब्लैक सी देखो, ब्लैक सी कहाँ पे है? ये रही आपकी ब्लैक सी. एंड इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि श्रंक हुई है नहीं हुई है, तो ये रॉन्ग है. एंड लेक बाइकाल इज इन रशिया. ये देखो ये लेक बाइकाल, इट इज इन रशिया. इट इज द लेक बाइकाल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम एंड इट्स द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक विच वॉज फॉर्म्ड एज एन एंशिएंट रिफ्ट वैली हैविंग टिपिकल क्रीसेंट शेप. And it is also a UNESCO World Heritage Site which was being announced in 1996 के टाइम पे इसको अनाउंस किया गया था. और ये कहाँ पे है? ये रशिया में है. अच्छा, ये ना ये जो सवाल था ये उस साल बहुत न्यूज में था कि लेक बाइकाल भी कुछ हद तक रिड्यूस हुई है, बट इसमें और
उस साल ना जो काफी सारे थे कोचिंग्स, उसने आंसर दिया था डी, दैट इज बोथ 1 and 3rd. बट द कैच वॉज कि उन्होंने पूछा कि श्रंक इमेंसली एंड ड्राइड अप। तो ये जो इमेंसली वर्ड है, इससे क्या हो गया कि ये जो आंसर है इसका सिर्फ 1 ओनली है, दैट इज, और यही आंसर दिया था यूपीएससी ने कि सिर्फ आरएलसी श्रिंक हुई है, लेक बाइकाल भी श्रिंक हुई है, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंड कि हम उसको इस कैटेगरी में ले आए। सो इसका आंसर है दैट इज ओनली 1, दैट इज आरएलसी। अच्छा, अब इसके बाद जो ये जो ब्लैक सी है, ये भी बहुत न्यूज में है बिकॉज ऑफ द रिसेंट इशू ऑफ बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो यहाँ पे यूक्रेन है, इस साइड रशिया है, और यहाँ जैसे क्रीमिया है, और यहाँ टर्की है। तो ब्लैक सी को भी बिल्कुल कर लेना। एंड सी, ब्लैक सी आपकी कहाँ है, ये रही आपकी ब्लैक सी। इट्स अ मार्शनल सी इन अटलांटिक ओशन विच इज लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, ब्लैक सी। तो इसका आंसर क्या था, दैट वाज ओनली आरएलसी, 1 ओनली। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात करता है अबाउट एनजीटी एंड सीपीसीबी। हम अगर ये चीज देखें, एनजीटी वाज फॉर्म्ड इन 2010 अंडर द एनजीटी एक्ट 2010। एंड ये क्या करता है, ये एनवायरमेंट रिलेटेड केस जो भी है वो इसके पास आता है। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार सवाल आ चुका है, दैट इट इज बीइंग गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस एंड नॉट गाइडेड बाय सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एनजीटी इज बीइंग मैंडेटेड टू डिस्पोज द एप्लीकेशन विद इन 6 months, कि अगर इसके पास कोई भी केस आ गया तो विद इन 6 months उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। नाउ कम टू सीपीसीबी। ये 1974 में बना था अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये इसके अंडर ये बनाया गया था 1974। तो ये हमने इनके बारे में बात करी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। ये बोलता है एनजीटी एक्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट, ये बिल्कुल सही है, वेयर इज द सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, ये भी एक्ट ही है, तो इसके ये स्टेटमेंट इससे रॉन्ग हो जा रही है। तो इसका ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट, ये देखो, ये बोलता है एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes the cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country. This is absolutely right. ये right statement है क्योंकि ये environmental justice को promote करता है, और जब environment related cases जो हमारे high court और जो supreme court में कम जाएंगे तो of course it will reduce the burden of litigation in the higher courts. And जो हमारा CPCB है उसका वो quality of air पे बिल्कुल उसका यही काम है, क्योंकि Central Pollution for Control Board, so इसका काम ये है। so इसमें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट राइट है, दैट इज ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस टॉक अबाउट विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर assumes significance. Which of the following fall under the conservation agriculture? Conservation agriculture is very important for UPSC these days, and you will find such articles in the magazine Kurukshetra. This magazine covers the topic of agriculture, rural development to a great extent. तो ये यहाँ पे आया था टॉपिक। अब ये देखो इसमें क्या कुछ बोलता है। फर्स्ट ये बोलता है कि अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस। यस, ये भी राइट है, बिकॉज जब हम मोनोकल्चर को प्रैक्टिस नहीं होगा, वी विल ग्रो अ डाइवर्सिफाइड क्रॉप, तो इट इज ऑलवेज गुड फॉर द एग्रीकल्चर फील्ड। सो इसमें जैसे सॉइल इरोजन कम होगी, देन द सॉइल विल यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स वेरी नाइसली, सो ये सब अच्छा रहेगा। तो ये स्टेटमेंट राइट है। देन द सेकंड इज अडॉप्टिंग द मिनिमम टिलेज। सी इट्स लाइक दैट कि आप जितनी ज्यादा सॉइल में डिस्टर्बेंस कम करोगे उतना ज्यादा फायदा है। तो दिस टॉक्स अबाउट दैट हैविंग मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस बाय अडॉप्टिंग नो टिलेज। तो ऑफ कोर्स दिस इज राइट, ये स्टेटमेंट राइट है। देन थर्ड बोलता है अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। अगर हम प्लांटेशन क्रॉप्स को बिल्कुल अवॉइड ही कर दे तो उससे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होगा। अब देखो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। हम एग्रीकल्चर को कंजर्व करने के लिए प्लांटेशन क्रॉप्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब इट्स लाइक दैट कि हम प्लांटेशन क्रॉप ऑल टुगेदर ही उनको ग्रो करना बंद कर दे। तो ऐसे कि जैसे कि आपकी जो ये शुगर केन हो गया, ये सब कॉटन हो गया, इनको हम ग्रो नहीं करेंगे तो फिर हमको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो ये तो बिल्कुल सा एक इम्प्रैक्टिकल सा है सोल्यूशन। तो ये वाली स्टेट ये रॉन्ग हो गया। देन फोर्थ है द यूजिंग क्रॉप रेजिड्यू टू कवर द सॉइल सरफेस। ये भी राइट है दैट कि उसमें हम क्रॉप को जो क्रॉप रेजिड्यू से पूरा उसमें कवर कर देंगे, सो दैट इट विल कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर एंड ऑल दैट स्टफ। देन द लास्ट इज द adopting the spatial and temporal crop sequencing and crop
क्रॉप रोटेशन, ये भी बिल्कुल सही है, ये इट विल हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो अगर हम देखें इसमें थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, तो थर्ड ऑप्शन कहाँ कहाँ पे उनको हटा दो, दैट इज फर्स्ट में है, सेकंड में है एंड फोर्थ में है। सो सिर्फ थर्ड बचेगा, दैट इज सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर राइट। सो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर राइट, दिस इज योर आंसर। अगेन दिस टॉपिक कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्री एज वेल एज मीन्स, इसको बहुत अच्छे से करना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात करता है विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल, consider the following statement. First, talk about a high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. ये वाली स्टेटमेंट इन्होंने बिल्कुल रॉन्ग है, दे हैव रिवर्स्ड इट, ये बिल्कुल उल्टी दी है। अब इसमें अगर आप ध्यान से अपना कॉमन सेंस भी लगाओ कि हमारा हर जगह जोर है ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज करने का, और ये बंदे ये बोल रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ज्यादा है तो वो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसको बहुत कम कर देगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये बल्कि उल्टा है, इट विल इंक्रीज इट्स कैपेसिटी। अगर वो डिक्रीज कर रहा होता तो सिंपल सी बात है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट ही क्यों करते हैं। सो दिस क्वेश्चन वाज मोर ऑफ कॉमन सेंस। अगर आप ये देखो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो आप ऑप्शंस में देखो, फर्स्ट रॉन्ग, थर्ड हट गया, फोर्थ हट गया, सिर्फ बी ऑप्शन बच गया, आप अपने आप आंसर पे पहुंच जाओगे। सो आई विल कंसीडर दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ मोर अबाउट कॉमन सेंस देन योर नॉलेज। तो इस टाइप की जो है स्टेटमेंट उनका भी बहुत ध्यान रखना। अब ये बोल रहा है, अब हम इसको और भी देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोलता है। ये बोल रहा है सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल। सी इट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई सॉइल का बिल्कुल ही कोई रोल नहीं है, इट्स वेरी टफ टू प्रूव दैट। सो यस, सॉइल हैज इट्स रोल इन सल्फर साइकिल बट इसका रोल बहुत मिनिमल होता है, स्टिल इसका होता है, तो स्टेटमेंट को हम रॉन्ग मानेंगे। द थर्ड इज irrigation over a period of time can contribute to the salinization of some agriculture lands. See यहाँ पे ना they have said some agriculture lands, तो इसमें आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको आएगा पंजाब और हरियाणा का, जहां पे ओवर इरिगेशन के कारण सॉइल की अल्कालिनिटी एंड सॉइल सैलिनाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हुई है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल वो है, सो ये राइट है एंड द आंसर इज दैट ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, 2 इज द आंसर। तो ये बिल्कुल ही I will consider this question more of a common sense than your knowledge. Now let's move to the next question. It talks about it that this is on organic farming in India. ये बोलते हैं the national program for organic production is operated under the guidelines of the Union Ministry of Rural Development. So हम पहले NPOP के बारे में देखते हैं। ये काम क्या करता है? It grants this NPOP, it grants organic farming certification. Organic farming certification ये grant करता है through a process of third party certification, and it is implemented by APIDA, which is under Ministry of Commerce and Industry. ये इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इस हिसाब से हम देखें, इसने बोला है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इससे अगर हम देखें, हम एलिमिनेशन मेथड देखें, फर्स्ट हट गया एंड फोर्थ हट गया, तो 2 एंड थर्ड में डाउट है। नाउ वील सी द स्टेटमेंट्स। आप ना एक काम और करना, फर्स्ट डू ऑल द ऑप्शंस एंड उसके बाद मूव टू द आंसर। ये जो एलिमिनेशन मेथड है इसके बाद यूज करना, जैसे हमने इसमें वी हैव डन इन बिटवीन द क्वेश्चन, वहां पे मत करना। फर्स्ट रीड ऑल दिस ऑप्शंस, देन गो फॉर द कि क्या क्या उन्होंने ऑप्शन दिए। तो ये जो पार्ट 2 है ये बोलता है द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फंक्शंस एज अ सेक्रेटेरिएट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। तो हमने यहाँ पे बात ही किया था, ये स्टेटमेंट राइट है, सो दिस सेकंड इज राइट। एंड सिक्किम हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। दिस वाज वेरी मच इन न्यूज, ये 2016 के मेंस में भी आ रखा है ये क्वेश्चन, और ये यहाँ पे भी इन्होंने 2018 में पूछा है, ये बिल्कुल सही है, उस टाइम पे बहुत न्यूज में था। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो द आंसर इज 2, दैट इज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर राइट। अब हम इसके बाद ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का और कुछ देखते हैं। देखो, एक होता है FSSAI जो हमारे कंट्री में फूड रेगुलेटर है, और इट ऑल्सो रेगुलेट्स द ऑर्गेनिक फूड इन डोमेस्टिक मार्केट एंड इंपोर्ट्स। जो हमारे देश में इंपोर्ट्स होता है ना फूड का, ये उस ऑर्गेनिक फूड को भी यही रेगुलेट करता है, FSSAI। और इसके बाद देखो एक है PGS स्कीम, दैट इज पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया। अब ये क्या बोलता है, मतलब इसमें क्या है, इसका काम है टू सर्टिफाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड इट इज डन ओनली फॉर द फार्मर्स एंड कम्युनिटीज।
अब ये क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड लोगो और अ स्टेटमेंट एंड इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो अगर आप इसमें देखो तो हमारा जो ऑर्गेनिक फूड है इसमें आपका एनपीओपी आता है और ये पीजीएस आता है और आपका एफएसएसएआई आता है। ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। तो ये तीनों हमारे जो ऑर्गेनिक फूड है उसको रेगुलेट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यूपीएससी इनसे भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके यहाँ मतलब यहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। एंड ऑर्गेनिक जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक फूड्स पे आए क्वेश्चन तो इन योर मेंस तो हमें इन सब का भी रोल को बिल्कुल वहां पे समझाना है दैट व्हाट आर द थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी स्ट्रीमलाइंड इन दीज ऑर्गेनाइजेशन और वो सब भी बिल्कुल इनकी जरूरत है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 2018 ईयर पेपर एंड ये वाली जो डिस्कशन थी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।